हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आप सबका अपने चैनल द एजुकेशन वाला में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ रिवीजन नंबर 2 फॉर जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। जैसा कि आपको पता है 4 डेज रह गए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इस सेशन में कवर करने वाले हैं 75 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75। आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस सेशन को फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर समझ के करिए। मिनिमम आपने 65 प्लस मार्क्स किसी तरीके से इसमें लाने हैं, तभी आप सेफ हैं। और ये सेशन पूरा देखें, ऐसा ना हो कि आप फाइनल एग्जाम दे के आ जाएं और फिर आपको ये सेशन मिले और आपको फिर पछताना पड़े। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन ईस्ट एशिया? चाइना, रशिया, जापान, इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना। Question number 2. The potential difference is measured by an instrument called ammeter, voltmeter, lactometer, none of these. The right answer is option B, voltmeter. Question number 3. When a ray of light goes from a rare medium to denser medium, it bends towards the normal. Option B, away from normal. Option C, travels in straight direction. Option D, none of these. The right answer is option A, towards the normal. Question number 4. Bave Wali Mata Temple is located in option A, Patni Top, option B, Akhnur Fort, option C, Bahu Fort, option D, Amar Mahal Palace. The right answer is option C, Bahu Fort. Question number 5. The Amarnath Yatra is organized by which of the following? Option A, State Government, option B, Shri Amarnath Shrine Board, option C, Central Government, option D, both A and B. The right answer is option D, both A and B. Question number 6. What is the length of Himalayan range in India? Option A, 1200 km, option B, 1800 km, option C, 2500 km, option D, 3600 km. Right answer is option C, 2500 km. Question number 7. The longest sea beach in India is option A, Aksa Beach, option B, Marina Beach, option C, Chapura Beach, option D, Dew Beach. The right answer is option B, Marina Beach. अभी मैं आप लोगों के लिए इतना फास्ट जो है क्वेश्चन के आंसर्स बता रहा हूँ। ये सेशन हम फास्ट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। टोटल आपके पास 4 डेज बचे हैं, मैक्सिमम हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए, ऑयल प्रोडक्शन, ऑप्शन बी, फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन सी, मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन डी, फूड प्रोडक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फिश प्रोडक्शन। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू fish production, याद रहे। Question number 9. Which Indian recently received the IAF World Space Award for the Chandrayaan-3 mission? Option A, Manoj Govil, option B, S Somnath, option C, PK Mishra, option D, Pawan Kumar Goenka. The right answer is option B, S Somnath. इन्होंने ये अवार्ड जो है इटली में लिया था, और कब लिया था, किस ईयर में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। Question number 10. International Day of Yoga is celebrated on option A, 23 March, option B, 21 June, option C, 22 September, option D, 21 December. The right answer is option B, 21 June. Question number 11. In which year radio broadcasting began in India? Option A, 1999, option B, 1971, option C, 1922, option D, 1933. The right answer is option C, 1922. Question number 12. Vande Mataram was composed in which Indian language? Option A, Hindi, option B, Pali, option C, Sanskrit, option D, Urdu. The right answer is option C, Sanskrit. Question number 13. The book The Man Who Divided India was written by option A, Maulana Abul Kalam Azad, option B, Dr. Rajendra Prasad, option C, Rafiq Zakaria, option D, K.K. Ariz. The right answer is option D, K.K. Ariz. The Man Who Divided India book का writer जो है वो है K.K. Ariz. Question number 14. Who was the first Hindi writer to receive Janapith Award? Option A, Mahadevi Verma, option B, Sumitra Nandan Pant, option C, Dr. Ramdhari Singh, option D, Rabindranath Tagore. The right answer is option B, Sumitra Nandan Pant. Question number 15. Who among the following formed the group
Brothers of India. Option A, George Furiston. Option B, Annie Besant. Option C, Alan Watts. Option D, Mahatma Gandhi. The right answer is option D, Annie Besant. Question number 16. When did the Jallianwala Bagh massacre takes place? Option A, 13th March 1919. Option B, 13th April 1919. Option C, 14th April 1919. Option D, 15th May 1919. The right answer is option B, 13th April 1919. जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, ये याद रहे कि एक्साइटमेंट में आपको क्वेश्चन आता होगा, क्वेश्चन का आंसर आता होगा, पता भी होगा, और एक्साइटमेंट में आप उसका रॉन्ग आंसर कर देंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। यहाँ पे एक एक मार्क्स जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है एग्ज़ाम देने का। आप लकी हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस मौके को हाथ से ना गंवाने दें। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन विच ईयर? कैपिटल जो इंडिया की थी पहले कोलकाता थी, बाद में वो दिल्ली बनाएगी। किस ईयर में कन्वर्ट हुई कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली? बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1915। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1911। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड इज लोकेटेड इन? ऑप्शन ए चाइल, ऑप्शन बी शिलारू, ऑप्शन सी परवाणु, ऑप्शन डी दिल्ली। राइट आंसर इज ऑप्शन बी शिलारू। ये हिमाचल प्रदेश में है हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड, जो कि शिलारू में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट मैच? ऑप्शन ए 3 डे, ऑप्शन बी 4 डे, ऑप्शन सी 5 डे, ऑप्शन डी 1 डे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5 डे। ये याद रहे, क्वेश्चन जो है अगर इजी भी आपको लग रहे हैं लेकिन आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चन बंदा यहाँ से टफ क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके जाता है और इजी क्वेश्चन वहाँ पे बड़ी आसानी से लॉस कर देता है, छूट जाते हैं उससे, रॉन्ग आंसर कर देता है उनके। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, सेशन पूरा देखें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहे होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। विच कंट्री वॉन द 2019 आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इंडिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फिनलैंड। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि 2019 की आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है किस कंट्री ने होस्ट की थी? कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। विच टेनिस प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल्स एट द 2016 समर ओलंपिक्स? ऑप्शन ए एंडी मुरेरी, ऑप्शन बी रॉगर फेडरर, ऑप्शन सी चेतन सिंह, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंडी मुरे। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मैन सिंगल एट 2016 समर ओलंपिक्स में। अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि 2016 समर ओलंपिक्स किस कंट्री ने होस्ट किया था? क्वेश्चन नंबर 22 है। विच सिटी is the host of 2024 BRICS Summit? Option A Kazan, Russia. Option B Sao Paulo, Brazil. Option C Shanghai, China. Option D Johannesburg, South Africa. Right answer है इसका ऑप्शन A Kazan, Russia. Question number 23. Which country has recently banned use of WhatsApp and Google Drive in government departments? Option A Vietnam, option B Indonesia, option C India, option D Hong Kong. Right answer is option D Hong Kong. Question number 24. Can I introduce you dash my wife? Option A with, option B to, option C from, option D for. इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी टू। अभी मैं आपको एक इजी ट्रिक बता देता हूं कि आप इंग्लिश ग्रामर को किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं और किस तरीके से ये मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। देखिए, कैन आई इंट्रोड्यूस यू डैश माय वाइफ, इसके जो चारों के चार ऑप्शन है, इन चारों को इसमें मैच करके देखो, ठीक, और जो वाला सूटेबल लगेगा वही इसमें लगा दो। ऑलमोस्ट वही एक्यूरेट होता है। जैसे कैन आई इंट्रोड्यूस यू विद माय वाइफ, ऑप्शन सेकंड कैन आई इंट्रोड्यूस यू टू माय वाइफ, ऑप्शन थर्ड कैन आई इंट्रोड्यूस यू फ्रॉम माय वाइफ, ऑप्शन फोर कैन आई इंट्रोड्यूस यू फॉर माय वाइफ। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कि जो मैच हो रहा है, ज्यादा सूटेबल है यहाँ पे, वो है ऑप्शन बी टू।
ठीक? इसी तरीके से आपने इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जो है इसी तरीके से कवर करेंगे। अगर आपको अभी तक इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में डर लग रहा है कि इंग्लिश हमारी वीक है, कहीं उसके क्वेश्चन छूट ना जाएँ, तो ये वाला प्रोसीजर ज़रूर याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गनाइजेशन? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन सी आईएसआरओ, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 26, लुक एट दिस सीरीज 36, 34, 30, 28, 24, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 20। अभी आपके मैं यहाँ पे 1 मिनट लेना चाहूँगा। मैं बताता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़रूर एग्ज़ाम में आएँगे और किस तरीके से आपने उनको सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहले आप सीरीज़ को देखें 36, 34, 30, 28, 24। या तो ऐसी सीरीज़ में डिवीज़न होता है या मल्टिप्लिकेशन होता है या प्लस या माइनस होता है। क्लियर? इस वाली सीरीज़ में क्या है 36 एंड 34 कितने का डिफ़रेंस है? 2 का। यानी कि 36 माइनस 2 हुआ है 34 एंड 30। 34 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। पहले 2 डिजिट्स में 2 का माइनस हुआ है, दूसरे 2 डिजिट्स में 4 का सब्ट्रैक्शन हुआ है। इसी तरह से 30 माइनस 2 28, 28 माइनस 4 24, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। अभी यहाँ पे 24 माइनस 2 22, तो 22 ऑप्शन में आप देख लें कहाँ पे होगा, वही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी 22 इज अ राइट आंसर। इस तरीके से आपने ये जो क्वेश्चन है करने हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 है इसी तरीके से, लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? ऑप्शन ए है हमारे पास 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 13। तो किस तरीके से देखें, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने सीरीज को देखना है। इसमें मैंने पहले ही आपको बताया या एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक? तो सीरीज में यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 2 डिजिट्स देखें 7 एंड 10 कितने का डिफरेंस है? 3 का। मतलब 3 एडिशन हुआ है, 3 प्लस हुआ है। सेकंड एंड थर्ड में देखें 10 एंड 8, यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हुआ है, +3 -2। 8 एंड 11 में क्या है? +3 हुआ है। 11 एंड 9 में क्या हुआ? -2। इसका मतलब है 3 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 ये हुआ है। ठीक? 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 9, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 2 10। तो यहाँ पे 10 आएगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 10। क्लियर? समझ आ गया ये? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, होम की यूजेस फॉर। ऑप्शन ए मूव्स द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी moves the cursor beginning of the paragraph, option C move the cursor beginning of the screen, option D move the cursor beginning of the line। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी move the cursor beginning of the line। क्वेश्चन नंबर 29, दूसरा क्वेश्चन है हमें कंप्यूटर से। क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू, कंट्रोल प्लस एन की जो है किस लिए इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए सेव डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी ओपन डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी न्यू डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी क्लोज डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी न्यू डॉक्यूमेंट। जब भी हमने नया डॉक्यूमेंट खोलना हो, शॉर्टकट तरीके से कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे एमएस वर्ड में स्पेशली, तो हमारे पास नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, ये आप नोट करके रखें। एवरी डे ए मैंगो सेलर सेल्स हाफ हिज स्टॉक, 10% ऑफ द स्टॉक ओवरनाइट गेट्स स्पॉइल्ड। इफ 1983 mangoes rotted over 3 nights, then how many did he start with on the first day? ये मैथ का क्वेश्चन है। ये आपको जरूर एक क्वेश्चन अपने जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, एवरी डे एक मैंगो सेलर है जो हाफ स्टॉक जो है अपने मैंगोज का वो सेल कर देता है, उसमें 10% स्टॉक जो है नाइट में ही स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इफ अगर 1983 मैंगोज 3 नाइट्स में खराब हो गए, तो अभी हमने बताना है कि हाउ मेनी डिड ही स्टार्ट विद ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन जब उसने अपना ये बिजनेस मैंगो सेलिंग का स्टार्ट किया था, कितने मैंगोज के साथ स्टार्ट किया, ये हमने बताना है।
ऑप्शन ए है हमारे पास 25,000, ऑप्शन बी 24,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 32,000। तो यहाँ पे आप इसको नोटबुक पे लिखें, एक्सप्लेन करें इसको, ठीक क्लियर करें। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद आंसर पिन कर दूंगा। क्लियर? चलिए जी, जनरल नॉलेज एंड बुक्स एंड ऑथर्स की तरफ से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी इन चंपारण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा सेशन देखें। ऑप्शन ए है डीजी तेंदुलकर, ऑप्शन बी आनंद गांधी, ऑप्शन सी एस गणेशन, ऑप्शन डी महादेव देसाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, डीजी तेंदुलकर। यही है ऑथर गांधी इन चंपारण बुक के। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड? ऑप्शन ए संजय माथुर, ऑप्शन बी बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन सी आदित्य सेन, ऑप्शन डी मोहन चौहान। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बिंदेश्वर पाठक। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन बी हैरी क्रूटो, ऑप्शन सी जॉन गॉर्डन, ऑप्शन डी ब्रूनो रोजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन हॉकिंग। ये देखिए, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको जरूर अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए सेशन को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। एक बार भी अगर आपने इस सेशन को मिस कर दिया तो याद रखें, लास्ट पे पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फर्स्ट गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वाज पब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1959। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1955 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन? ये बुक है, इस बुक का ऑथर बताना है हमने कौन है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जे एस मिल, ऑप्शन सी फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रांसिस फुकुयामा। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी आर सी दत्त, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन डी दादाभाई नरोजी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दादाभाई नरोजी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हु रोड द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी जॉन मैनर्ड केन्स, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 8, हु रोड द बुक मेघदूत? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हु रोड द बुक द व्हाइट टाइगर? ऑप्शन ए अरविंद अधिगा, ऑप्शन बी सलमान रश्दी, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी अमिताभ घोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद अधिगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु रोड द बुक रंगभूमि? ऑप्शन ए माहेश्वता देवी, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी गुलजार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु रोड द बुक कोरा कागज? ऑप्शन ए अनीता देसाई, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी किरण देसाई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अमृता प्रीतम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ कर्फ्यू नाइट? ऑप्शन ए बिशारत पीर, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी रोहिंटन मिस्ट्री, ऑप्शन डी विक्रम सेठ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिशारत पीर। याद रहे, कर्फ्यू नाइट का ऑथर है बिशारत पीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, हर एक एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन देखने को मिला है, हु रोड द बुक राज तरंगनी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी कल्हाना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कल्हाना। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हु हैज रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन ए अनीस जंग, ऑप्शन बी जगमोहन, ऑप्शन सी एम जे अकबर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जगमोहन। जगमोहन ने ही लिखी है ये किताब, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15, A Voice for Freedom is a book written by option A Corazon Aquino, option B Nayantara Sehgal, option C Benazir Bhutto, option D Jagdeep Singh. The right answer is option B, Nayantara Sehgal. Question number 16,
The famous book Anand Math was authored by option A Sarojini Naidu, option B Bankim Chandra Chattopadhyay, option C Aurobindo Ghosh, option D Rabindranath Tagore. The right answer is option B Bankim Chandra Chattopadhyay. यहाँ पे ऑप्शंस पे मैंने एक और ऑप्शन नहीं दिया है, आपको हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए along with another ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। और इसका ऑथर कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो याद रखें, बंकिम चंद्र ही याद नहीं रखना, पूरा इसका नाम याद रखना। ऐसा ना हो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जगह पे आप बंकिम चंद्र चटर्जी को मार्क कर दें और आपका इजी आंसर रॉन्ग हो जाए, ठीक। क्योंकि एक एक मार्क्स जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस स्टेटमेंट दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट which governs least? Option A Herbert Spencer, option B Harold Lasky, option C Alexis de Tocqueville, option D Henry David Thoreau. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हेनरी डेविड थोरियो। क्वेश्चन नंबर 18, Aurobindo was the author of option A Discovery of India, option B Hindu View of Life, ऑप्शन सी योगा शास्त्र, ऑप्शन डी सावित्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सावित्री। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट हिस्ट्री बुक वाज रिटन बाय ऑप्शन ए यूक्लिड, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेरोडोटस। The question number 20, who is the author of famous book The Judgment? Option A Anthony Mascarenhas, option B R Venkataraman, option C Kuldeep Nair, option D Janardhan Turkur. The right answer is option C Kuldeep Nair is the author of famous book The Judgment. Now, general knowledge with special reference to Jammu and Kashmir. Question number 1, the Jammu and Kashmir is the northernmost state of India, shares border with which of the following country? Option A Afghanistan, China, Pakistan, all of these. इसका right answer आएगा option D all of these. Question number 2, कठुआ, डोडा, राजौरी आर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ J&K. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रहे कि सही क्वेश्चन जो है एक्साइटमेंट में जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शन इसके ध्यान से देखें और उसके बाद ही राइट आंसर करें। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर लद्दाख कारगिल सेक्टर। तो याद रहे इसका राइट आंसर है जम्मू। जम्मू रीजन में ही कठुआ, राजौरी, डोडा वगैरह लोकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज बाउंडेड बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन 3 साइड्स? ऑप्शन ए जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुंछ। पुंछ ही एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की जिसके तीनों साइड से लाइन ऑफ कंट्रोल लोकेट करती है, बाउंड करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द नुब्रा, खारुंदंगला एंड चंगला पास लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? ऑप्शन ए नुनकुन, ऑप्शन बी कोराकरम, ऑप्शन सी बोरजिल, ऑप्शन डी पीर पंजाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोराकरम। Question number 5, which of the following pass lies in the Pir Panjal range of mountains? Option A Baramula Pass, option B Haji Pir Pass, option C both A and B, option D none of these. The right answer is option C both A and B. Baramula Pass and Haji Pir Pass both lies in the mountain range of Pir Panjal. Question number 6 है हमारे पास, which of the following pass joins the Poonch and Uri sector? Option A Baramula Pass, option B Haji Pir Pass, option C Banihal Pass, option D none of these. राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाजी पीर पास। याद रहे इनमें से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, आपको इस चीज का खास ख्याल रखें। तो अभी थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, सेशन को पूरा लास्ट तक देखें। नांगली साहिब गुरुद्वारा इज सिचुएटेड एट ऑप्शन ए उधमपुर, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी पुंछ, ऑप्शन डी राजौरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुंछ। क्वेश्चन नंबर 8, the overall length of the Indus River is? Option A 1980 km, option B 3180 km, option C 2000 km, option D 2500 km. The right answer is option B 3180 km. Question number 9 है हमारे पास, how many historical bridges are there on the Jhelum River? Option A 7, 8, 9, 10. The right answer is option C 9. Question number 10. The Doda River originates from option A Doda Glacier, option B Suru Glacier, option C Zrang Drung Glacier, option D none of these. बहुत सारे हमारे व्यूवर्स भी ऐसे होंगे
और ऐसे ही कई कैंडिडेट्स होंगे जो इसका आंसर ऑप्शन ए कर देंगे, डोडा ग्लेशियर। क्यों? द डोडा रिवर है तो डोडा ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होता होगा, जबकि ये इसका रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रंग द्रुंग ग्लेशियर। क्लियर? इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, एक्साइटमेंट में नहीं आना, ताकि इजी क्वेश्चन आप छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुरु रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द्रंग द्रुंग ग्लेशियर। ऑप्शन बी, ज़ांस्कार इन लद्दाख। ऑप्शन सी, लेह वैली। क्वेश्चन नंबर 11, सुरु रिवर originates from Drangdrong Glacier. Option B, Zanskar in Ladakh. Option C, Leh Valley. Option D, none of these. The right answer is option B, Zanskar in Ladakh. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो नोन एज किशन गंगा। ऑप्शन ए, रवि रिवर, नुब्रा रिवर, तवी रिवर, नीलम रिवर। किशन गंगा को, इनमें से किस रिवर को किशन गंगा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीलम रिवर। क्वेश्चन नंबर 13, शीशनाग लेक इज एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम पहलगाम। शीशनाग लेक कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है पहलगाम से? ऑप्शन ए, 14 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 16 किलोमीटर। ऑप्शन सी, 22 किलोमीटर। ऑप्शन डी, 28 किलोमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 28 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, द हार्वन लेक इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम श्रीनगर। ऑप्शन ए, 7 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 14 किलोमीटर। ऑप्शन सी, 21। Option D, 28 kilometer. The right answer is option C, 21 kilometer. Question number 15. The estimated hydropower potential of the UT of J&K is option A, 20,000 megawatts. Important question है, ध्यान में रखें। Option B, 16,000 megawatts. Option C, 25,000 megawatts. Option D, 12,000 megawatts. Right answer is option A, 20,000 megawatts. Question number 16. Which of the following projects has been handed over to NHPC for execution? Uri hydroelectric project second, Bursar second, Seva second hydroelectric project, or all of these? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन तीनों को एनएचपीसी को हैंड ओवर किया गया है फॉर एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1966। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1960। क्वेश्चन नंबर 18, द इंडस रिवर इज ऑल्सो नोन एज डैश इन संस्कृत। संस्कृत में इंडस रिवर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, सरस्वती, यमुना, बिंदु, सिंधु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 19, द लेंथ ऑफ ग्रेट इंडस रिवर इन इंडिया इज 2650 किलोमीटर में बताना है ये। 1114 किलोमीटर, 1550 किलोमीटर, 1560 किलोमीटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1114 किलोमीटर लेंथ है इंडस रिवर की इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड। इंडस वाटर ट्रीटी कहां साइन हुई थी? दिल्ली, कराची, कोलकाता, वाशिंगटन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कराची। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द पीएम इन इंडिया एट द टाइम ऑफ द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी। जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 22, इंडस वाटर ट्रीटी इज बिटवीन टू कंट्रीज। ए, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान। किस कंट्री के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडिया पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? हेमिस, दाचीगाम, किश्तवाड़, सलीम अली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेमिस नेशनल पार्क जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सेफ्रॉन क्रॉप? ऑप्शन ए, क्ले, सैंडी, लोमी, कैरेवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैरेवा। क्वेश्चन नंबर 25, गोल्ड रिजर्व्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन ए, कारगिल, ऑप्शन बी, लद्दाख, ऑप्शन सी, सोनामर्ग, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जम्मू एंड कश्मीर में अभी सिर्फ सोनामर्ग ही लोकेट करता है, कारगिल एंड लद्दाख जो है अलग यूटी बन चुकी हैं। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, इन तीनों जगहों पे गोल्ड रिजर्व्स फाउंड मिले हैं। ठीक, तो अभी आज के सेशन में हमने 75 क्वेश्चंस कवर किए। आउट ऑफ 75 आपने कितने मार्क्स गेन किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको आज का ये सेशन जो है कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।